Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video, we are going to discuss the recently held pre-exam paper of Odisha Judicial Services 2023. The recruitment is for 2023, but the exam was held on 22nd June 2024. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पेपर. सो यू कैन सी द क्वेश्चन पेपर कम्स लाइक दिस. देखिए कुछ इस तरीके से आता है. दिस इज सीरीज ए. यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन. सो you have to write your roll number here. Okay, 100 questions, and these are other instructions, and there is negative marking of 25%. So let's move on to the questions. Question number 1 is, through 42nd constitutional amendment which of the following expressions were added to the preamble? तो कौन कौन से expression add किए गए थे constitution में by the 42nd amendment? So those were socialist, secular and integrity. Earlier it was sovereign democratic republic. After 42nd amendment it became sovereign socialist secular democratic republic. So B, C and D. B is the answer. Next is 2. The constitution of election commission is provided in constitution under article 324. B is the answer. Next is 3. Which of the following judges of the Supreme Court is famously known as the Green Judge? कौन थे वो? He was Justice Kuldeep Singh. He was famous for decisions on environment. So C is the answer. And this is a repeat question. बहुत ही common question है. तीनों question बहुत ही common question है. कई बार ये आ चुके हैं exam papers में. Next is 4. Can fundamental rights under Indian Constitution be waived by a person? Yes. Only rights, no. Fundamental rights cannot be waived. D is the answer. Next is 5. Sixth schedule of Indian Constitution contains provision with regard to administration of tribal areas of some states. Which of the following state is not included in it? तो कौन कौन से states हैं? देखिए आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं. Sixth schedule A, M and T, M. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है. So D is the answer. And this is also a repeat question. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चन, दे आर ऑल रिपीटेड क्वेश्चंस. और ये तो OJS में ही आ चुका है क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 6. अगेन आप देख लीजिए. प्रेजेंस रूल्स अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स वैलिड इन द स्टेट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years. D is the answer. And where this is provided? It is provided in article 356 clause 4 proviso 1. All right. Next is 7. Which writ can be issued when appointment is contrary to statutory provisions? तो अपॉइंटमेंट पे कौन सी रिट इशू होती है? दैट इज क्यू वारंटो. C is the answer. Next is 8. Which schedule of Constitution of India contains a list of recognized languages? 8 schedule. C is the answer. तो अभी तक हमने 8 क्वेश्चंस किए हैं और ऑल क्वेश्चंस वर रिपीटेड क्वेश्चंस. बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है. इस बार तो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इजी बनाया हुआ है. नेक्स्ट इज 9. अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? तो टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस. यस, ये है. टू ओन एंड एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी. यस. मैनेज its own affairs, matter of religion. Yes. To construct a religious place on government land. No. D is the answer. This is also a repeat question. Article कौन सा है? This is article 26, fundamental rights. Next is 10. The decision of Union of India versus H.S. Dhillon concerns. किससे कंसर्न करता है ये? The power of the parliament to make law with respect to a matter not enumerated in concurrent list or state list. A is the answer. A इसका आंसर है. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट नो, स्कोप ऑफ पार्लियामेंट नो. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है.
नेक्स्ट इज 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज इज अवेलेबल अगेंस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 10। देखिए सेक्शन 10 का जो ऑर्डर होता है तो उस पर क्या होता है, क्या अपील हो सकती है? नो, बिकॉज सेक्शन 10 ऑर्डर इज नॉट ऑन मैरिट्स, सो इट इज नॉट अ डिक्री, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 96 और इन अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स इन ऑर्डर 43। ओके, सो क्या कर पाओगे इस पे? यू कैन फाइल रिवीजन, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 12, which of the following section of the code expressly prohibits a suit under certain circumstances? तो सेक्शन 10 है, बार करता है यस रेस सब्जुडाइस, एंड सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, एंड 47 एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज द कोर्ट टू डिसाइड द क्वेश्चंस एनी क्वेश्चन अराइजेज अमंग द पार्टीज, है ना। सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 13, विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव सूट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या होंगे? ऑर्डर 1 रूल 8, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 14, ऑर्डर 39 क्या है? टेम्पररी इंजंक्शंस, रूल 2 सीपीसी, रूल 2 ऑफ सीपीसी डील्स विद, बताइए टेम्पररी इंजंक्शंस, बी इज द आंसर। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कहाँ पर है? ऑर्डर 21 में। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑर्डर 40, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38। ओके, नेक्स्ट 15, अंडर विच सेक्शन और ऑर्डर ऑफ सीपीसी ए प्रोविजन इज मेड टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू इंडिजेंट पर्सन। देखिए इंडिजेंट पर्सन का ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 33 है। बट क्या रूल 2 में लिखा हुआ है फ्री लीगल सर्विसेज के लिए? नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? रूल 18 में। सो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और देखिए अभी जो ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप जो छोटी स्टेटमेंट है वो देखिए। रेस जुडिकाटा इज सिमिलर टू एस्टोपल, क्या एस्टोपल की सिमिलर होती है? नो, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। आरजे स्टॉप द पार्टी फ्रॉम प्रूविंग द प्रीवियस डिसीजन टू बी इनकरेक्ट, ये ठीक है। आरजे कोरस्पोंडेंट टू दैट पार्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल विच कॉमनली नोन इन इंग्लिश लॉ एज एस्टोपल बाय रिकॉर्ड, बिल्कुल ठीक है। रेस जुडिकाटा आउस द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू ट्राई द केस व्हाइल एस्टोपल शट्स द माउथ ऑफ अ पार्टी, शाउट्स लिखा हुआ है, ये शॉट्स लिखा हुआ है, द शट्स आना चाहिए, शट द माउथ ऑफ पार्टी बीइंग अ रूल ऑफ एविडेंस, दिस इज करेक्ट। सो सी इसमें आंसर है, सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट 17, द प्लेस ऑफ सुइंग इन अ सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज द प्लेस where the husband resides and where the wife resides. If the wife has never lived at husband's place, the suit must be brought in the court of place where the wife resides. All of the above कहीं भी कर सकते हैं, D is the answer. एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? देखिए आरसीआर के लिए स्पेशल नहीं है, जो भी हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी प्रोविजंस हैं डाइवोर्स के, आरसीआर के, या फिर वर्ड मैरिज, वर्डेबल मैरिज, सबके लिए जो है कोड कौन सा है? दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। Okay. Next 18, a party may approach the court for an amendment of his opponent's pleading, also known as compulsory amendment. It is provided for under, देखिए कोई भी pleading हो, amendment कहाँ होती है? Order 6 Rule 17, C is the answer। कि power of the court का है, procedure जो दिया हुआ है Order 6 Rule 17 में ही दिया हुआ है। Next 19, if a party who has obtained an order for leave to amend pleading does not amend the same within how many days, he shall not be permitted to do so without the leave of the court. Within 14 days, B is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? Order 6 Rule 18 में। Next is 20, abatement of proceeding is provided for under, कहाँ है abatement? In order 22, A is the answer। 23 क्या है? Withdrawal, consent decree। 24 payments into court। 25 security for cost। 26 क्या है? commission। next 21, the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 received the assent of the president on, कब मिली थी? on 25 December 2023। B is the answer। अब ये लागू हो गए हैं। Next 22, offense against other laws if punishable with imprisonment for 3 years and upward but not more than 7 years, then। तो देखिए जो फर्स्ट स्केड्यूल है सीआरपीसी का,
इवन जो नया CRPC आया है उसमें भी। तो जो उसका पार्ट 2 है वो बताता है अदर केसेस जो ऑफेंसेस हैं वो कैसे रहेंगे। तो मोर देन जो 3 ईयर्स वाले हैं वो रहेंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। लेस देन 3 ईयर रहेगा नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। देखिए यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ही नहीं है, कॉग्निजेबल सिर्फ एक है एंड बेलेबल लिखा हुआ है। तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A court has no power to release a woman on bail if the offense is punishable with death or imprisonment for life. तो दे सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। फिर an accused shall not be released on bail by court if he had been convicted previously on 2 or more occasions of cognizable offense with imprisonment of 3 years or more. This is correct. Necessity for identification by witness during investigation shall not be a sufficient ground for rejection of bail. This is also correct. ये सब कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 480 ओ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब न्यू CRPC। सो नाउ ऑनवर्ड्स आई एम आल्सो टेलिंग द न्यू प्रोविजंस ओनली। ठीक है, सो इसमें 2 and 3 आर करेक्ट, सो C इज द आंसर। नेक्स्ट इज 24, द मैजिस्ट्रेट्स पावर टू ऑर्डर इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 30 cannot be in access to the magistrate's power to order under section 29 and cannot exceed 1/4 of the period of imprisonment with magistrate is committed to a sentence। ठीक है, तो सेक्शन 30 में डिफॉल्ट किसका है? इन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन। ऑलराइट, तो ये दोनों ही ठीक हो गए, बोथ A and B आर करेक्ट। अब जो सेक्शन 30 है वो हो गया सेक्शन 24 इन न्यू CRPC। Next 25, under section 428, the period of detention undergone by convict cannot be set off during investigation, trial or inquiry any other case। इन तीनों में जो भी डिटेंशन रही है उसकी उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, अदर केस में नहीं हो सकता। तो D इसका आंसर रहेगा। नाउ दिस सेक्शन 428 इज नाउ 468 इन न्यू CRPC। नेक्स्ट 26, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस सेक्शन 320 में प्रोवाइड किया था इन ओल्ड CRPC, अब न्यू में कहाँ पर है? सेक्शन 359। अंडर प्रोविजन CRPC केस वन चार्ज फ्रेम रिजल्ट्स इन एक्विटल ऑफ एक्यूज्ड। कंपाउंडिंग ऑफेंस हुआ है और चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, तो उसके बाद क्या होगा? कंपाउंडिंग हो गई, अगर एक्विटल हो जाएगा। A इज द आंसर का मेंशन किया गया है इन सब सेक्शन 8, सो A इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 27, a charge sheet is filed under section 302 of IPC against 5 accused A, B, C, D, E. A and B are absconding. C is exempted from personal appearance by the order of court. D and E are present in the court. The case can be committed to session court against all accused. सिर्फ अपीयरेंस ही उनकी जो है एग्जम्प्ट की है, तो D इसका आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अक्यूज्ड। अब जो सेक्शन जो है 302 IPC क्या हो गया है? सेक्शन 101 इन न्यू IPC, भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द कोर्ट कैन रिकॉर्ड डिमेनर ऑफ अ विटनेस अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC। सेक्शन है ये 280, A इज द आंसर। और ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आता रहता है। नाउ ये 280 हो गया है अब सेक्शन 315 इन न्यू CRPC। Next 29, it is obligatory upon the court to grant bail to person convicted pending presentation of an appeal under which section? 389(3). C is the answer। अब ये सेक्शन कौन सा हो गया? दिस सेक्शन 430 in new CRPC। C is the answer। Next 30, which of the following has been specifically excluded from the definition of complaint under section 2D of CRPC? प्रोटेस्ट पिटीशन है, यह जॉइंट कंप्लेंट है, पुलिस रिपोर्ट नहीं है। C इसका आंसर रहेगा। अब जो डेफिनेशन चली गई है कंप्लेंट की इन सेक्शन 2H इन न्यू CRPC। नेक्स्ट 31, एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट हाउ ओल्ड शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन 90A? 5 years old। A इज द आंसर। नाउ इन न्यू एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन हो गया है ये 93। नेक्स्ट 32, अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? When it is shown that a person is alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it। बिल्कुल ठीक है ये।
This was mentioned in section 107 of old evidence act. न्यू एविडेंस एक्ट में हो गया सेक्शन ये 110. फिर बी, when it is shown that a person was not heard for 7 years by those who would naturally heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is on the person who affirms it. ये भी करेक्ट है. दिस इज सेक्शन 108 इन ओल्ड एविडेंस एक्ट. न्यू एविडेंस एक्ट में हो गया सेक्शन ये 111. फिर है सी, when it is shown that a person is in possession of anything, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. ये बिल्कुल ठीक है. This is section 110 in old evidence act and 113 in new. Then D is when it is shown that one person stands to the other in position of active confidence. The burden of proving the good faith on a transaction between them is on the party who is in position of active confidence. तो that repose confidence in the other. ये गलत है, तो ये D यहाँ पर wrong हो गया. D is the answer. सेक्शन कौन सा है? दिस इज सेक्शन 111 in old evidence act and in new it is 114. Next 33. What does section 3 of Indian Evidence Act deals with? अब मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है गलत है. कैसे? सेक्शन 3 इन न्यू एविडेंस एक्ट जो है दैट इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. ठीक है. सेक्शन 3 जो है इंटरप्रिटेशंस है, उसमें जो फैक्ट एंड इशू की इंटरप्रिटेशन दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने आंसर की दी वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स दिया हुआ है. दैट शुड बी, आई थिंक इन्होंने क्वेश्चन न्यू एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ लिया, या तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग. बिकॉज जो सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशंस है वो काफ़ी सारी हैं. ठीक है ना. फैक्ट एंड इशू भी है, एविडेंस भी है, डॉक्यूमेंट भी है, तो डील्स विद स्पेसिफिकली नहीं है. तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को डील करता है सेक्शन 5 इन ओल्ड एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 3 इन न्यू एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट 34. Under which section of the Indian Evidence Act can a witness be cross-examined on previous statement made by them in writing or reduced into writing? That was section 148. अब जो न्यू एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग हो गया है सेक्शन 148. सो अभी A was the answer, बट अब आए तो 148 लगाना है. Next 35. What is the rule regarding the admissibility of evidence of character in civil cases under Indian Evidence Act? Character of evidence is always admissible, no in some cases, never admissible in some cases, admissible in certain circumstances. Admissible in certain circumstances. बिल्कुल ठीक है. C is the answer. अब न्यू एविडेंस एक्ट में सेक्शंस हो गए हैं ये 46 to 50. एविडेंस एज टू कैरेक्टर. नेक्स्ट 36. Which section of Indian Evidence Act deals with the relevancy of statement made in the course of business? This was in section 32 सेक्शन 2. सो A is the answer. अब इन न्यू एविडेंस एक्ट ये सेक्शन हो गया 26 एंड दिस इज क्लॉज B. नेक्स्ट 37. विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? जजमेंट है, पुलिस चार्जशीट है, मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है, विल है. बट देखिए विल जो रजिस्टर्ड विल होती है दैट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, एंड अगर यहाँ से विल लिखा हुआ तो हम ये कैसे माने कि रजिस्टर्ड है नहीं. जो अनरजिस्टर्ड विल है दैट इज ए प्राइवेट डॉक्यूमेंट. तो मैं कहूँगा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, बट आंसर इसका सी है. सी तो है ही है. मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट. विल इज ऑल्सो अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट समहाउ. अब पब्लिक डॉक्यूमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ओल्ड में भी 74 था और न्यू में भी वो 74 ही है. नेक्स्ट 38. सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट्स ओनली. बिल्कुल ठीक है. टू स्ट्रेंजर्स नो, पार्टी टू इंस्ट्रूमेंट एंड स्ट्रेंजर नो. ए इज द आंसर. पार्टीज के बीच में ही होगा ना कि भाई मैं ये एविडेंस देना चाह रहा हूँ, कहता कि नहीं ये एविडेंस नहीं लगेगा, तो ए इसका आंसर रहेगा. नाउ दिस इज सेक्शन 95 इन न्यू एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट 39. रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट आर, देखिए दीज आर नाइदर सिनोनिमस नॉर को एक्सटेंसिव. तो यहाँ देखिए नॉर एक्सटेंसिव लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए को एक्सटेंसिव लिखा हुआ है. तो यहाँ पर भी को एक्सटेंसिव आना चाहिए था. मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन भी जो है गलत हो गए, बिकॉज अगर हम इसको वर्ड को खुद से अज्यूम करेंगे then it would be right, otherwise it is not. So this question is also required to be deleted.
नेक्स्ट इज 40 द एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय अदर। कितना इजी क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन अगेन। सर जेम्स एफ स्टीफन बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 41 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट इज डेल्ट अंडर। अब देखिए जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के सेक्शंस थे आईपीसी में वो डिफरेंट थे। तो सीक्रेसी वाला था इन सेक्शन 346, जो सी इसका आंसर है। अब जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है वो हो गया है 126, कन्फाइनमेंट कहाँ आ गया 127, और सीक्रेसी वाला हो गया है सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 127 इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट 42 ए इज ट्राइड फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड कन्विक्टेड। द विक्टिम सब्सिक्वेंटली डाइज। द स्टेट वांट्स टू ट्राई ए फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर आईपीसी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट लीगल पोजीशन। It cannot be tried for the second time as per section 300। ये चार्ज जो है वो डिफरेंट लगा है ना अभी। A was already convicted and punished, hence cannot be second, no। A can be tried for the second time for culpable homicide amounting to murder। C is the answer। This was section 300 and it was illustration B। Now this section is section 337 of CRPC। क्वेश्चन ये CRPC का पूछ रहे हैं बट IPC में पूछ लिया। Illustration B again। डबल जियोपार्डी, एट्रोफोस एक्विट, एट्रोफोस कॉन्विक्ट कहाँ हो गया अभी ये 337 न्यू सीआरपीसी में। नेक्स्ट 43 एक्सटोर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर 10 years इज डेल्ट अंडर सेक्शन इज 388। डी इज द आंसर। नाउ न्यू आईपीसी सेक्शन इज 308 एंड दिस इज सबसेक्शन 6। Next is 44 A holds B down and fraudulently takes B's cell phone from B's trouser without his consent। A commits the offense of, देखिए होल्ड्स डाउन मतलब जबरदस्ती करी है तो क्या हो गया रॉबरी हो गई। ए इसका आंसर हो गया। रॉबरी कहाँ आ गया है अब इन सेक्शन 309 इन न्यू आईपीसी और ये इलस्ट्रेशन ए है। नेक्स्ट 45 A obtains a decree against B for a sum not due। It may be an offense under IPC if A has done so। ये कह रहे कि A ऑब्टेन की डिक्री अगेंस्ट B जो कि सम ड्यू नहीं था, है ना, बिना ड्यू हुए उसने डिक्री ऑब्टेन कर ली कि भाई इसने मेरे पैसे उधार थे वो वापस नहीं किए। अगर आईपीसी में देखे तो ये ऑफेंस हो जाएगा। कैसे? उसने क्या किया, फ्रॉडुलेंटली किया है। इफ ए हैज डन सो फ्रॉडुलेंटली, सो बी इज द आंसर। फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में एंड इलस्ट्रेशन जो है इलस्ट्रेशन है ये सेक्शन 247 इन न्यू आईपीसी। अब न्यू आईपीसी की बात करेंगे हम सारी ये, ठीक है। ओल्ड आईपीसी में ये सेक्शन 208 में था, अब न्यू सेक्शन को याद रखिए। नेक्स्ट 46 गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, कहाँ पर था ये, इन 194 आईपीसी। बी वाज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 230 इन न्यू आईपीसी। नेक्स्ट 47 what is punishment is provided under section 298 IPC for giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offense। देखिए क्वेश्चन ही गलत कर दिया यहाँ पे। ये सेक्शन जो है दूसरा है, वो सेक्शन जो है ये प्रोक्योर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, बिकॉज इन्होंने नीचे पूछ लिया सेक्शन कौन सा है, 194 है, तो 194 लिखना चाहिए था, यहाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें इम्प्रिजनमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इन्होंने आंसर की 1 ईयर दे दिया, ठीक है ना। बिकॉज सेक्शन 298 क्या है, 298 तो रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करना है बाय अटरिंग वर्ड्स, ऑलराइट। ना तो न्यू आईपीसी में ना ओल्ड आईपीसी में, तो ये क्वेश्चन जो ये गलत हो गया। ओके अगेन अब सेक्शन कौन सा हो गया है ये, इसी सेक्शन 230 और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है। नेक्स्ट 48 A finds a gold ring on the road knowing it to be property of Z, he having unknowingly lost it there। A picks up the ring and pledges it with a money lender to raise a loan। A has committed क्या किया उसने, dishonest misappropriation of property, DMP। A is the answer। Earlier this was section 403, अब सेक्शन हो गया है कौन सा, न्यू आईपीसी 314 एंड दिस इज इलस्ट्रेशन F। अगेन दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। अगला देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो कॉमन क्वेश्चन एंड रिपीट क्वेश्चन, आ चुका है कई बारी। क्वेश्चन नंबर 49 A is carried by a tiger, Z fires at a tiger in good faith intending to rescue A, knowing
it to be likely that it may the shot may kill A. ये यहाँ देखिए कितनी मिस्टेक्स हैं. The shot fired by Z gives A mortal wound. Z has committed no offense. A is the answer. अब हो गया है ये सेक्शन. अभी जनरल एक्सेप्शंस में है सेक्शन 30 and this is illustration 2. Okay, in new IPC. Next is 50. Again, this is repeat question, common question. A police officer tortures Z in order to induce Z to confess that he has committed a crime. Here A is guilty of the offense of hurt. क्या किया उसने? हर्ट किया है. ये सेक्शन था ये 337. अब इन न्यू आईपीसी सेक्शन हो गया है कौन सा? Now this is section 120 and this is illustration A in that section in new IPC. Next 51. Which statements cover the definition of domestic violence under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005? Any physical, emotional or economical harm inflicted by a family member, ये include है? Yes है. Any act of violence committed against women in her home? Yes. Any form of abuse that occurs within domestic setting? All of the above. C is the answer. Domestic violence की definition कहाँ दी गई है? In section 2G and it refers section 3. ठीक है. देखिए जो स्टेटमेंट 1 है वहाँ पर फैमिली मेम्बर नहीं लिखा गया है सेक्शन 3 में, बट वहाँ पर लिखा गया रेस्पोंडेंट. और रेस्पोंडेंट की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है और हिज फैमिली मेम्बर्स. तो ये वहाँ से इंटरप्रिटेशन लेके क्वेश्चन बनाया गया है. नेक्स्ट 52. Which of the following is not a form of domestic violence recognized under वही DV Act? Physical abuse है, verbal है, none is true. Next 53. Section 22 of DV Act provides for क्या है? This is about compensation orders. D is the answer. Protection order है 18 में, residence order है 19 में, 20 में है monetary relief, custody orders है 21 में. Okay. Next 54. What is the punishment provided under section 31 of DV Act? कितनी पनिशमेंट है? 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है कितने का? 20,000 रुपये का. सो 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट 55. DV Act provides for the establishment of protection officer to assist victims of domestic violence. बिल्कुल ठीक है. सेक्शन 18 है ना प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए. फिर है प्रोवाइड्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. देखिए जो एक्ट है उसमें शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड किया गया है प्रोविजन, बट रिहेबिलिटेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है. तो मैं कहूँगा कि थोड़ा क्वेश्चन ये कंट्रोवर्शियल सा है. अगर देखें तो आप फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करनी है, दैट इज ऑल्सो रिहेबिलिटेशन, इजंट दैट? बट जो आंसर किया है दैट इज 1 is true. आई वुड से दिस इज अ डाउटफुल क्वेश्चन. Next 56. Where the prescribed period of limitation for any application expiring on holiday, the application should be made a day prior to holiday, या फिर होना तो यही चाहिए भाई पहले ही कर लो, पता है जब हॉलीडे आ रहा है तो. बट होता क्या है? मे बी मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स. बी इज द आंसर. सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर दैट. नेक्स्ट 57. सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है? अपील्स एंड एप्लीकेशन पर होता है, सूट्स पे नहीं होता. सो बी इज द आंसर. दोनों ही रिपीट क्वेश्चन लिमिटेशन के. अगेन देखिए 58. सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू. अब देखिए अभी बताया सूट पर अप्लाई नहीं होता. क्या यार, रिपीट क्वेश्चन अगेन. सो डज नॉट अप्लाई टू सूट्स. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 59. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज इनकरेक्ट? Where disability continues up to death of that person, his legal representatives may institute the suit within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time so specified. ये बिल्कुल ठीक है. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 5. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट देखें तो where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. ये बिल्कुल ठीक है. दिस इज सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. फिर है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज reckoned shall not be excluded. It shall be excluded. कहाँ प्रोवाइड किया गया? इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 1. फिर है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड.
दिस इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 4. So wrong कौन सा होगा? Incorrect is C. C is the answer. Next 60. In which of the following circumstances the plaintiff shall not get the benefit as provided under section 14? Where another civil proceeding is disposed of after adjudication on merits by the competent court. तब तो section 14 apply होगा ही नहीं. Where another civil proceeding is disposed of for the want of jurisdiction. Jurisdiction पर ही तो होता है 14 allowed. So where another civil proceeding was diligently prosecuted by plaintiff in good faith in a court having no jurisdiction to try the said matter. इन दोनों पे 14 तो अप्लाई होता है. तो बेनिफिट कहाँ नहीं मिलेगा? ए वाले पे नहीं मिलेगा. तो ए इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 61. द इम्पोर्टेंट केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एन बालाकृष्ण वर्सेज एम कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ डिले इज नो मैटर. एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन इज द ओनली क्राइटेरियन. ये बिल्कुल ठीक है. द कंडोनेशन ऑफ डिले इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट. बिल्कुल ठीक है. Widen the scope and ambit of law of limitation. Yes, all are correct. All of the above. D is the answer. Next 62. A suit for possession of immovable property based on title can be brought within 12 years from the date of dispossession या फिर date on which possession of defendant becomes adverse. D is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 65 ऑफ Schedule of Limitation Act. Next 63. If the defendant is abroad during the period of limitation, such period is excluded from the period of limitation. बिल्कुल ठीक है. कहाँ प्रोवाइड किया गया? इन सेक्शन 15 सबसेक्शन 5. इंक्लूड होगा नो. एक्सक्लूड फ्रॉम द पीरियड ए ओनली इफ पीरियड ऑफ स्टे अब्रॉड इज मोर देन 30. नो. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 64. Which of the following amounts to presenting civil proceedings with due diligence and in good faith within the meaning of section 14? Failure to pay requisite court fee found deficient. No, ये नहीं होगा. Error of judgment in valuing a suit. No, इस पे भी नहीं होगा. तो neither A nor B. D is the answer. Next 65. Indemnity holder acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor all damages which he may be compelled to pay in any suit. बिल्कुल ठीक है. All the costs which he may be compelled to pay in any suit. Yes. All sums he may have paid under the terms of any compromise of any suit. बिल्कुल ठीक है. All of the above. D is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 125 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Next 66. Again repeat question. Continuing guarantee has been defined under section 129. B is the answer. 124 क्या है? Indemnity. Next 67. Who said that an offer need not be made to an ascertained person? मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन मान लो A है तो उसको देने की ज़रूरत नहीं. B मान लो ऑफर दे रहा है तो ज़रूरी नहीं वो A को दे. वो जनरल पब्लिक को भी दे सकता है. बट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज अंटिल इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय एन असर्टेन पर्सन. बट एक्सेप्टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन से ही आएगी तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ठीक है. ये किसने कहा था? ये कहा था सर विलियम एनसन ने. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 68. क्वेज़ाई कॉन्ट्रैक्ट एमर्ज्ड फ्रॉम अजम्पसिट या फिर इंडेबिटेटस अजम्पसिट. अजम्पसिट का मतलब क्या होता है? ही हैज़ अंडरटेकन मतलब अंडरटेक कर लिया कुछ. इंडेबिटेटस का मतलब क्या होता है? अज्यूम्ड एन अंडरटेकिंग टू पे. मतलब एक कहता है कि भाई अब क्वेज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि किसी के पास कोई किसी की चीज़ रह गई उसने वो यूज़ कर ली तो वो जिसकी चीज़ थी वो तो ये अज्यूम करेगा हाँ भाई उसने चीज़ रख ली है तो उसका मतलब वो पे करेगा. क्या है ये? इंडेबिटेटस अजम्पसिट. सो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 69. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वेज़ाई कॉन्ट्रैक्ट? ओब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट अभी बताया. ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड. ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. ये है क्वांटम मैरियट. ये है नोवेशन नहीं है. डी इज द आंसर. नोवेशन सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 62 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट 70. एक्स कॉन्टैक्टेड विद द टेंट हाउस फॉर इलेक्टिंग ए शामियाना फॉर परफॉर्मिंग द मैरिज ऑफ हिज डॉटर. देखिए ये एक रिपीट क्वेश्चन है. ये On the day of marriage, a curfew was claimed in the area preventing the celebration of the marriage. The Shamiana owner claims the charge agreed to be paid by X. मतलब कर्फ्यू लग गया तो शामियाना को क्या करेगा वो?
In the light of the above, which one of the following is correct? X has to pay the contracted charge. अगर देखिए जनरल डे टू डे लाइफ में बात करें तो उसको पे करना पड़ेगा, बिकॉज उसने शामियाना वाले ने अपना काम कर दिया. बट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर आप वहाँ जाएंगे कोर्ट में, अगर मान लो कोर्ट में गया पैसे मांगने के लिए, तो आप क्या करेंगे, क्या अजम्पशन लेंगे वहाँ पर, क्या डिफेंस लेंगे? डिफेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ठीक है भाई, पर्पस ही फ्रस्ट्रेट हो गया तो फिर पैसे किस बात के? तो डी इसका आंसर रहेगा. एक्स नीड नॉट पे एनीथिंग एज अ सेलिब्रेशन ऑफ द मैरिज वाज इम्पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ कर्फ्यू. सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 56 पार्ट 2. और जो एग्जाम्पल है, दिस इज क्रेल वर्सेस हेनरी. नेक्स्ट 71. X and Y jointly takes a loan from Z with a promise to repay the loan amount with interest within 2 years. Soon after taking the loan, X is declared as insolvent and remains insolvent till the date of repayment of loan. Y also failed to repay the loan. X, on the account of his status as insolvent, enjoys immunity from legal proceeding. In these circumstances, Z can in law institute a suit for recovery only 50% या फिर entitled to sue Y alone for recovery of the entire outstanding amount. ये correct है. Not entitled, entitled 50% no. B is the answer. इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 43 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जब जॉइंट प्रॉमिस होगा तो जो क्रेडिटर है वो किसी से भी, किसी एक से भी पैसे मांग सकता है. Next 72. Where two parties have made a contract, which one of them has broken? The damage which the other party ought to receive in respect of such breach should be such as may fairly and reasonably be considered either arising naturally or reasonably be supposed to have been in contemplation of both the parties at the time of entering the contract. This statement was laid down in the case of, कौन सा केस था ये? This was Hadley versus Baxendale. B is the answer. Next 73. Section 73 of Contract Act is based on the law of, again, Hadley versus Baxendale case. D is the answer. दोनों में Hadley versus Baxendale है. Paradigm versus Jane and Taylor versus Caldwell. This is on doctrine of frustration. Next 74. For the purpose of specific relief act, the word settlement means an instrument whereby destination or devolution of successive interest in movable property disposed of. No, ये नहीं है. Then instrument including codicil. No. ये definition जो दी गई है सेटलमेंट की वो दी गई है सेक्शन 2B ओ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. वहाँ लिखा हुआ है अदर देन कोडाइसल और विल लिखा हुआ है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए. यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग. तो ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया. ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट. नेक्स्ट 75. द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये है 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑन 1958. 1958 में जो है 9th रिपोर्ट जो है प्रेजेंट की थी किसने? फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने. और वो किस पर थी? स्पेसिफिक रिलीफ पर थी वो. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 76. एन ऑर्डर और डिक्री पास इन द सूट प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नीदर अपीलेबल नॉर रिव्यूएबल. सी इज द आंसर. क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं उसमें ओनली. ये सेक्शन में ही मेंशन किया गया है, नीदर द अपील नॉर रिव्यू इज अलाउड, है ना. Next 77. A defendant in a suit for recovery or possession of immovable property can take the plea of lawful title and in alternative plea of adverse possession. No, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई तो वो दोनों नहीं ले सकता फिर. As two are antithetical to each other. So B is the answer. ये एक repeat question है. Next 78. If any person is dispossessed of immovable property without his consent, otherwise in due course of law, he may by a suit recover the possession thereof. यह सेक्शन 6 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में केस कर सकता है. Notwithstanding to any other title that he may set up in such suit within a period of कितना? 6 months from date of dispossession. A is the answer. सेक्शन 6 में ही मेंशन किया गया है SRA में. Next 79. Which of the following proposition is correct? Where a party to the contract has obtained substituted performance of contract in accordance with section
20 of Specific Relief Act. About what? ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गया भाई। ये लिख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में कि भाई वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। ओके, लिख दिया, बट अबाउट व्हाट? द कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस ड्यूटी। क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूरा नहीं लिखा कि भाई किस में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है और किस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, दिस सेक्शन 14 ऑफ SRA दे आर आस्किंग, बट they have not mentioned the question properly, so this question is also wrong. Next is 80. Mr. A makes an allegation that Mr. B assaulted him and physically injured him. Mr. B states that the allegation is mischievous and false. He seeks to file a suit for restraint Mr. A from instituting or prosecuting any criminal proceeding in criminal matter. In view of section 41, which one of the following is true? वेयर इंजंक्शन कैन बी रिफ्यूज, और वहाँ पर क्लॉज डी में लिखा हुआ है इट कैन बी रिफ्यूज वेयर प्रोसिक्यूटिंग इन क्रिमिनल कोर्ट। उसको रेस्टेन करने के लिए आप नहीं दे सकते। द कोर्ट कैन पास अ रेस्टेन ऑर्डर। नो सच इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 81. In which of the following case Supreme Court ruled that a suit seeking merely declaration to title of ownership about a property without seeking possession, when the plaintiff is not in possession of the property, suit is not maintainable? तो ये केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिम 2012. A is the answer. Next 82. Next is 82. In which of the following cases injunctions cannot be granted? मतलब injunctions may refused. Again, Section 41 of Specific Relief Act. If it would impede or delay the progress or completion of any infra project or interfere with the continued provision of relevant facility. बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्यूज हो जाएगा, cannot be granted. When the plaintiff has personal interest in the matter, तो क्या होगा, तो मिल जाएगी रिलीफ, फिर इंजंक्शन ग्रांट कर देंगे, तो यहाँ रिफ्यूज कर देंगे. When the plaintiff has personal interest in the matter, तो यहाँ पर मिल जाएगा इंजंक्शन. फिर है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली अनफोर्स, तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इंजंक्शन नहीं मिलेगी. टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग प्रोसिक्यूटिंग एनी मैटर इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता तो रिफ्यूज हो जाती. अभी क्वेश्चन ऊपर हमने किया ही है, तो सिविल मैटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इंजंक्शन मिल जाएगी. ठीक है, तो 1 and 3 में रिफ्यूज हो जाएगी, तो कैन नॉट बी ग्रांटेड इन 1 and 3. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 83. Doctrine of lis pendens embodied in section 52 of TPA. Invalidated transfer या फिर it only enacts that the purchaser pending related suit is bound by the result of the litigation. B is the answer. Next 84. A makes a gift of land to B. C sues A for possession of the land while the suit is pending. B transfers the land to D. A dies and C obtains decree of possession against B as a legal representative of A. Is D's title affected by the rule of lis pendens so as subject of C's decree? Yes, if no, because B was not a party to the suit at the time of transfer by B to D. B को तो पता ही नहीं ना कि केस चल रहा है, उसने कर दिया, तो D का टाइटल जो इफेक्ट नहीं होगा. B is the answer. नेक्स्ट 85 है, मैच करना है लिस्ट को. ये सेक्शंस हैं. गिफ्ट का सेक्शन सबको पता है 123 होता है, यहाँ पे 122 लिख दिया गया है. ये 122 है, तो सी का 2 देख लीजिए. सी का 2 कहाँ पर? सी का 2 देखिए 2 में है, तो ये सी और डी आउट हो गए. मार्शलिंग कहाँ है? 81 में. बी का 4 हो गया, तो देखिए बी इसका आंसर आ गया. सेल सबको पता है 54 में है, और कंटीजेंट इंटरेस्ट का 21 में. Next 86. A takes a loan of rupees 5,000 from B and mortgages his house as security. In the mortgage deed, it was also mentioned that if he could not pay the amount within 5 years, then B will have right to sell the house and recover his amount. If the money could not be recovered from sale of house, then A will be personally liable. It is कौन सी mortgage है? सिंपल mortgage है ये, तो D is the answer.
सेक्शन कौन सा है मॉर्टगेज का? 58, और वहीं पर डेफिनेशन दी गई है मॉर्टगेज की भी। नेक्स्ट 87, द मॉर्टगेजर्स राइट टू रिडीम द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी एक्रूज एट एनी टाइम आफ्टर द मॉर्टगेज, या फिर व्हेन मनी बिकम ड्यू। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 88, द mortgagee has right to sue for mortgage money in the following cases, namely 68(1)(c), where the mortgage deprived of the whole part of security, ये ठीक है, in consequence of wrongful act of default, yes। फिर बी है 1D, where the mortgagee being entitled to possession of the mortgage property, the mortgagor fails to deliver the same to him or to secure the possession thereof to him without disturbance by the mortgagor or any person claiming under a title superior to that of the mortgagor. A and B both, C is the answer. Next 89, again मैच करना है। Doctrine of subrogation, section 92, consideration, section 61, accumulation, section 17, dependence 52। तो क्या बन गया? 4312, D is the answer. Next 90, A owes money to B who transfer the debt to C. B then demands the debt from A who, not having received notice of the transfer, as prescribed in section 131 of TP Act, pays B. The payment is valid and C cannot sue A for the debt. D is the answer. Next 91, which of the following gift is valid? A gives rupees 5,000 to B on condition that he shall murder C. No valid. A makes a gift of his field to B with the proviso that B becomes insolvent. B's interest in the field shall cease. No. A makes a gift of his field to B with the condition that B does not within a year set fire C's house, his interest shall cease. No. A makes a gift of a house to B on condition that the gift will be forfeited if B does not reside in it. ये कंडीशन ठीक है, सो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 92, अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय ए फीमेल हिंदू फ्रॉम हर फादर और मदर शैल डिवॉल्व इन एब्सेंस ऑफ एनी सन डॉटर ऑफ द डिसीज्ड। तो किसके पास चली जाएगी वो? heirs ऑफ द डिसीज्ड फीमेल हिंदूज फादर और मदर। ठीक है, सो बी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 15 के सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। नेक्स्ट 93, प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। बी इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है ये। 94, एस्टीट अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट मीन्स, एस्टीट का प्रोवाइड किया गया सेक्शन 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, इंडिविजुअल डाई इंटरस्टेट एंड डज नॉट लीव बिहाइंड एन हेयर, या फिर डज नॉट लीव बिहाइंड एन हेयर हु इज क्वालिफाइड टू सक्सीड द प्रॉपर्टी। फिर इंडिविजुअल डाई इंटरस्टेट एंड डज नॉट लीव बिहाइंड एन हेयर हु इज क्वालिफाइड टू सक्सीड द प्रॉपर्टी डिवोल्व्स ऑन द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल ठीक है। डी में लिखा हुआ डजंट डिवोल्व, नो, सो सी इसका आंसर रहेगा। Next 95, what is codicil? It is a schedule to any kind of will. No, it is not schedule। क्या ये addendum होता है to any kind of will। तो 1 और 3 में से एक ही ठीक होगा। It must be created by original creator of will, बिल्कुल ठीक है ये भी ठीक है। It does not alter the position, तो alter तो कर देता है ना फिर will की, तो ये गलत हो गया। तो 2 and 3 are correct। C is the answer. Next 96, in coparcenary property each copartner can acquire interest by birth। B is the answer, सिंपल चीज है। तो नेक्स्ट 97, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट daughter, son and father of male Hindu are legal heirs and they are placed as following। अब देखिए फादर जो है क्या होता है? क्लास 2 एयर होता है। देख लीजिए, तो बोथ आर क्लास 1, नो, फादर इज क्लास 1, नो, फादर एज क्लास 2, ये ठीक है। और डॉटर सन क्या है? वो क्लास 1 है, तो सी इसका आंसर हो गया।
Next 98, the convert's descendant under the Hindu Succession Act will be qualified or disqualified to inherit the property. D is the answer. अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर डिसेंडेंट्स हैं और जो पर्सन है वो बाद में कन्वर्ट हुआ है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। कन्वर्ट होने के बाद उसके जो बच्चे आए, उनके बच्चे आए तो वो डिसेंडेंट्स बन गए, तो फिर उनको नहीं मिलेगा। सेक्शन कौन सा है? 26 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। नेक्स्ट 99, इन द केस ऑफ प्रकाश वर्सेस फुलवती द कोर्ट डेल्ट सेक्शन 6 बट द क्वेश्चन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। बट देखिए, ये दादू वर्सेस दमन्ना वाला केस और प्रकाश वर्सेस फुलवती, इन दोनों को जो है ओवररूल कर दिया था किसने? विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा ने। स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, वो ओवररूल हो गए, है ना। बट ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, आई डोंट नो। सी इसका आंसर है वैसे। नेक्स्ट 100, द सिस्टम ऑफ ज्वाइंट फैमिली विद इट्स इंसिडेंट ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप इज अ पेक्युलरिटी ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ ईच को पार्टनर इन मिताक्षरा लॉ इज लायबल टू फ्लक्चुएट, इंक्रीज बाय डेथ ऑफ अनदर को पार्टनर एंड डिक्रीज बाय द बर्थ ऑफ न्यू को पार्टनर। कौन सा केस था? ये था केस था जी गजेंद्र वर्सेस जी नलिनी। ए इज द आंसर। और वहाँ पर एक कोटेशन थी एक्चुअली, दिस कोटेशन इज फ्रॉम बुक ऑफ NR राघवाचारी। इस केस में वो कोटेशन डाली जजेस ने, ठीक है, जजमेंट में लिखा हुआ है, तो ए इसका आंसर रहेगा। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज which was held on 22nd June of 2024। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।